કયું ગાવાનું છે દાદા આજે? તારે જે ગાવું હોય ગાન. હા. તારે એકલું જ છે એટલે તારે જ ગાવું પડશે, કોઈ જિલ્લાનું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાડી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. વાંધાને વચકાસહુ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નવ કલમો બોલો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ. પહેલેથી શરૂ કર ને પાછું. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પ્રમાણ ન દુભાવાય એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. સેકન્ડ ભૂલી નંબર. ગયું, ભૂલાઈ ગયું છે. હું જ બોલું. સરળ. हाँ ना लास्ट कलम बोलनी है ना. સેકન્ડ. સેકન્ડ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મ કિંચિત માત્ર પ્રમાણ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પ્રમાણ ન દુભાય એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. ખુશી, તમે ઓલ્ટરનેટ કરો. અચ્છા. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા
साधु उपदेशक हाँ, उपदेशक साधु साध्वी કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ कोई किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદા એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિઓ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ સ્ત્રી પુરુષ या नपुंसक गમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સમય દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સમય વિકાર સમય દોષો ન કરાવે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદા એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો જે દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ જીવંત કે મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવરવાણ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેમ આવું બધું થયું પછી હે જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિ આનંદજી जय सच्चिदानंद. त्रिमंत्र बुलाइए प्लीज. जरूर जरूर. नमो वितरागाय, નમો વિતરાગાય, नमो अरिहंताणम, નમો અરિહંતાણમ, नमो सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, નમો આયરિયાણમ, नमो वज्रायाणम, નમો ઉવજ્જાયાણમ, नमो लोये सव साहुणम, નમો લોય સૌ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચન મુક્કારો, सवपावपणासनो, સૌ પાવપણાસણો, मंगलाणं च सव्वेसी, મંગલાણં ચ સૌવેસિમ, परमं हवै मंगलम, પડવમ હવય મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ओम नमः शिवाय, ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, Daksh, daily prayer. हे दादा भगवान मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा ताकि मेरे शरीर रूप साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक रहे. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा. मैं बुरी सोबतों कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा ताकि मेरा सत्संग कभी नहीं छूटा. ऐसी मुझे परम शक्ति दीजिए. प्राप्त मन वचन काया गए और अपनी आत्मा का उपयोग केवल जीव मात्र की सेवा के लिए करूं क्योंकि सबसे बड़ा मानव धर्म है. मैं अपने और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में विश्वसनीय मॉरल प्योर रहूंगा ताकि दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं. हे दादा भगवान
मैं अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। मुझे समझ में अनंत तांत्रिक शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। स्टडी प्रेयर खुशी आता है? मैं बोल सकता हूँ दादा? ओके, करिए। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को मैं तोड़ने का दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन आवरण ऊपर से टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। केवल इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके खुशी। हाँ, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल के हैं हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी हैं कच्चे। कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे काम अच्छे। अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दक्ष। हाँ, हे शुद्धात्मा दादा गण आप अलग हो, दक्ष अलग है। हे शुद्धात्मा दादा गण आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्परेरी है। हे शुद्धात्मा दादा गण आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। खुशी। જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, ખુશી જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, ખુશી રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, ખુશી ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। ओके। कल आए थे आप? हाँ आई थी मैं। तो आपको होमवर्क मालूम है क्या है? मैं होमवर्क दक्ष। करना भूल गई थी। दक्ष, आपको मालूम है? जय सच्चिदानंद। हाँ हाँ, होमवर्क ये था कि अपन ने मम्मी के अंदर अपन ने मम्मी को कितनी बार, मम्मी और दीदी को कितनी बार अप्रिशिएट किया और मम्मी के अंदर कितनी बार भगवान देखे। ओके, तो बोलो आपने कितना अप्रिशिएट किया मम्मी को? मैंने मम्मी को एक बार अप्रिशिएट करा था। क्या मम्मी ने क्या आपको दिया? जब मम्मी ने आज मेरी फेवरेट सब्जी बना के दी थी और मैंने मम्मी के अंदर जब भगवान देखे कि आज जब खाना खत्म हो गया था, जब एक रोटी बची थी, जब भी मम्मी ने वो रोटी खा ली, मम्मी ने कुछ भी चिड़ नहीं करी, गुस्सा नहीं करा। ओके, श्रेया होमवर्क क्या था? कि हम किस में सीरियस है और मम्मी को अप्रिशिएट किया कि नहीं। ओके, आपको क्या सीरियस है? आप किस में तीन सीरियस है? गोल में सीरियस मैं रहना चाहती हूँ पर हूँ नहीं, और स्टडीज में मैं सीरियस हूँ। तो आज में सीरियस है तो आज सूर्य नमस्कार और ब्रेन योगा किया था? हाँ क्या बात है, वेरी गुड। दक्ष आपने किया था? हाँ। दार्जिया आपने किया था? No. नहीं। खुशी आपने की थी? नहीं. तोरल आपने किया था? हिताक्षी आपने किया था? मैंने किया था। ओके। दूसरा तो आज तो आप सीरियस था हेल्थ में। दूसरा किस में आप दूसरा किस में सीरियस था आज? स्टडी में सीरियस। क्या स्टडी में सीरियस याद है? मैंने आज एक्स्ट्रा स्टडी भी की थी हम।
नहीं किया था। और आपके घर पे आके टाइम टेबल बनाया था? हाँ, घर पे, स्कूल से घर पे आके टाइम टेबल बनाया था? क्या कह स्टडी रहे, टाइम, आवाज नहीं आ रही फिर से। स्टडी टाइम टेबल बनाया था? नहीं, तो वो कैसे सीरियस हो सकते हैं? प्रिया, स्टडीज में आप किसका कैसे सीरियस था? मैंने मेरा स्टडी का स्केड्यूल बना लिया है और सब टाइम टेबल के स्टडी के अकॉर्डिंग के मैं करती हूँ। वेरी गुड। कोरल, मैंने पढ़ाई के लिए अभी स्टडी टेबल बना दिया है, अभी मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। फॉलो नहीं किया। दक्ष, जय सच्चिदानंद, आज मैंने मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं करा था। तरिए, जय सच्चिदानंद, मैंने पढ़ाई में टाइम टेबल मेरा है ही नहीं। सीरियस नहीं है आप पढ़ाई में? ओके। और सच साधन आप किसने किया? प्रिया, क्या? सच साधन मेरे पूरे सच साधन नहीं हुआ, 22 आउट ऑफ 25। वेरी गुड। कोरल, मेरे पूरे दक्ष, जय सच्चिदानंद, आज मैंने पूरे संसाधन करे थे। वेरी गुड। मेरी एक बार नकल बच गई, मैं सोने के पहले एक बार कर लूंगा उसको। वेरी गुड। खुशी, आज संसाधन छूट गया था। अब करते ही नहीं है ना, कितना दिन से नहीं किया सच साधन? ओके। कांति दादा, हाँ जी। ये तीनों गोल है उन लोग बहुत सीरियस ने। आज श्रेया कंप्लीट सीरियस थी और दूसरे लोग नहीं था, तो क्या करेगा सीरियस करने के लिए? उसको मोटिवेशन करो। अपना जो फर्ज है और खास करके पढ़ाई के प्रति और पेरेंट्स के साथ जो व्यवहार हो रहा है और खास करके मम्मी के प्रति जो व्यवहार हो जाता है, उसके प्रति हमें ज्यादा सिंसियर रहना बहुत जरूरी है। हमारे लाइफ के अंदर हम जितने सिंसियर होते हैं किसी भी कार्य के प्रति, चाहे पढ़ाई हो, मम्मी के साथ व्यवहार हो और पिताजी के साथ, या स्कूल के अंदर हमारे जो फ्रेंड्स हैं, टीचर्स लोग हैं, कोई भी किसी के भी साथ हमें सिंसियर रहना है। इस सिंसियर एक ऐसी हमारे जीवन जीने की कला है जिसके प्रति हम हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं, अपना कैरियर बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। आपको कौन सी दिक्कत है वो भी आप हमें बता सकते हैं। जब पढ़ाई करना ही है तो उसके प्रति
बहुत सिंसियरिटी होना चाहिए। और जो भी कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। और जब अपने लिए ही कुछ करना है तो क्यों न हम हार्टिली, सिंसियरली, लगन के साथ उस कार्य को पूर्ण करें। तभी कहा जाता है सिंसियर कार्य ही एक बहुत बड़ी भक्ति कहलाती है। तो समझ में आता है? हाँ। हाँ, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं, आपको ही क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा। कुछ ही सत्साधन क्यों नहीं हाँ। होते हैं? टाइम नहीं मिलता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है? सत्साधन का इतना बड़ा महत्व है, वो जैसे जैसे हम करते रहते हैं वैसे वैसे इसका अनुभव हमारा होता जाता है, बढ़ता जाता है। मन को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये आज आपकी जो उम्र है वो उम्र के अंदर ये सब मन को अच्छा नहीं लगता है, मगर हमारे जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। पढ़ाई में भी हेल्पफुल है, दूसरों के साथ व्यवहार करने में भी इतना ही जरूरी है। ये पूरा लाइफ के लिए काम आएगा। पढ़ाई जो है वो स्टैंडर्ड तक ही वो काम में आता है, मगर ये सत्साधन जो है वो सत्साधन करने से हमारे पढ़ाई के, हमारे संसार व्यवहार के कोई भी विघ्न हो वो दूर हो जाते हैं। सरस्वती देवी की कृपा बनी रहती है। अच्छी तरह से पढ़ने से याद शक्ति भी हमें बहुत बढ़ जाती है। तो सत्साधन तो जहां तक हो सके सिंसियरली करना है। मन बताएगा कि मेरा ये होमवर्क है, मेरा ये स्कूल का काम है, मेरा ये काम है, मेरे को टाइम नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। जब किसी भी बात का इम्पोर्टेंस हमें समझ में आता है तो अपने आप उसके प्रति सिंसियरिटी बढ़ जाती है, और सिंसियरिटी ही अपना जीवन है और कुछ नहीं। खुशी समझ में आती है बात? हाँ। हाँ। क्या बताया कांची दादा ने? खुशी कांति दादा ने ये बताया कि सत्साधन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो स्टडी में भी काम लगेगा, वो उसमें सिंसेरिटी बहुत रहेगी। और कुछ मन तो बताएगा कि नहीं करने का है, पर वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो मन बताता है ऐसा? हाँ, मन बताता है क्या और उसका करेंगे आप? मान भी लेते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे कांची दादा? मन मान बोलता है हाँ, नहीं करने का है और मान लेता है। नहीं, हमारी मन को अच्छा नहीं लगता है, मगर वो मन का सुनने का नहीं है। हमारा जो ध्येय है, जिसके प्रति हमारी
सिंसियरिटी है, उसके प्रति हमें सिंसियर रहना है। तो खुशी क्या करेगा? अब कितना स्टैंडर्ड में है खुशी? 8। 8th में। हाँ 8th में 9। आपको क्या क्या बनने का है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर। तो नहीं, मन कैसे बनाएगा डॉक्टर बनने के लिए? डॉक्टर ऐसे बन जाता है? सत साधन के बिना बनते हैं? स्टडी के नहीं बिना बनते हैं? नहीं। हेल्थ के बिना बनते हैं? तो क्या करेंगे रवि? दादा, ये हेल्थ स्टडी और संसाधन हमारे गोल से कैसे रिलेट करता है? तो आपको आता तो नहीं है? सब बेनिफिट करता है, आप हेल्थ में नहीं करते हैं, साधन नहीं करते हैं, नौ कलम नहीं आती है, तो कैसे हेल्प करेगा ये? आपको सीरियस नहीं है ये सब करने का ना? तो अभी रिजोल्व करो, अभी आप तो बहुत छोटे हैं, तो अभी रिजोल्व करोगे सब कर देंगे। देखो आज खुशी और तोरल इतना दिन से आया तो नौ कलम भी नहीं, वो भूल गया था। दैट मीन्स आप एवरीडे नौ कलम नहीं करते हैं ना, राइट खुशी? राइट तोरल? एक कांजिदा 9 कलम एवरीडे नहीं करते हैं तो क्या क्या फायदा होगा? कांति दादा, हाँ 9 कलम इन लोग नहीं करते एवरीडे तो क्या फायदा होगा? अरे ये 9 कलमे तो सभी शास्त्रों का सार है, और वो भावना हमें रोज करनी चाहिए। उससे क्या फायदा होगा कांति दादा? वो तो जीवन है, जीवन हमें किस तरह जीवन जीना है और किस जागृति के साथ जीवन जीना है, वो 9 कलमे करनी चाहिए। वैसे तो दिन में 3 बार करनी है, मगर पढ़ाई की वजह से आप एक बार भी कभी भी कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। शक्ति, दादा भगवान के अंदर इतनी शक्तियां प्रकट हुई है, हम जो भी शक्ति मांगेंगे वो शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। तो हम क्यों न शक्ति मांगे? तो 9 कलम तो अवश्य करना है, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। आज नहीं है, इसी की वजह से हम शक्ति मांगते हैं, और ये शक्ति मांगना एक पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच, और शक्ति मांगने से मिलती है। अब खुद 9 कलम में करके देख लीजिए। दरिए क्या बताया तो कांति दादा ने 9 कलम का इम्पोर्टेंस? कि 9 कर्म के बिना एक तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब वो है ना, हर एक चीज के लिए पॉजिटिविटी के लिए भी स्टैंड करते हैं। और दूसरा खुशी? और
हाँ बोलो धैर्य बोलो। और ऐसा भी कि अगर मतलब नव कर्म है ना हर एक पॉजिटिव चीज के लिए स्टैंड करता है, तो मतलब अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग है ना पॉजिटिविटी डेवलप करेंगे हमारे। तो अभी क्या करेगा? आपको तो नहीं आता है तो क्या करेगा? मैं दादा मैं पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा। कब? हर रात को पढ़ के सोऊंगा। कब पक्का हो जाएगा? विदाउट लुकिंग बोल सकते हैं? दादा मुझे नव कर्मों तो आती, लेकिन मैं सीक्वेंस वाइज नहीं बोल पाता। भैया ये देखो, एक्सक्यूजेस बहुत आता है। सिस्टमैटिक कंप्लीट टीचर को ऐसा बोलता है हमको सब आता है पर हम लिख नहीं सकता है, उल्टा लिखेगा तो टीचर क्या बोलेगा? ठीक हो उल्टा लिखो तो हम फेल कर देगा, राइट? तो हमने आपको पूछा कि आप कब अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो पूछा हमने। दादा जब लर्न हो जाएगी तो मैं आपको अकेले डिसाइड करके सुनाऊंगा। अभी कब करेंगे? मैं आज से स्टार्ट करूंगा। हर रात को है ना अपने आप को नहीं वो दो मैंने या नहीं पूछा, हमने बोला आपको पक्का कब होएंगे? आफ्टर एक वीक में। एक वीक में? क्यों इतना डिफिकल्ट है? दैट मीन आपको सीरियस नहीं मालूम पड़ा कि इसका मीनिंग क्या? एक वीक में आपका कितना घटा जाएगा? तो फिर दादा मैं ये मंडे तक सुना दूंगा आपको। थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, तो भाई कल देखो अपना कांति दादा ने सिंसियरिटी बोला, तो कल बताना आपने किधर सिंसियरिटी किया और इनसिंसियरिटी किधर किया। ओके ठीक है? श्रेया, श्रेया आप क्यों सीरियस है? आप तो आज गोल्ड मेडल आपको तो मिल गया। हाँ सीरियस क्यों है श्रेया? हाँ, नहीं वो सुन रही हूँ मैं। मामी के साथ झगड़ा हुआ? नहीं। तो हंसती क्यों नहीं है? कांति दादा, श्रेया को हाँ हंसने में पैसा पड़ता है, क्या करेगा? नहीं। क्या करता है? श्रेया को अभी हंसती है, हमने बोला तब। वो खुशी भी सीरियस है, वो तो ठीक है सीरियस की, क्योंकि उसने तो बहुत गलती किया है, 2 मास से तो बहुत कुछ नहीं किया है सत्साधन और ओके ओके, नो प्रॉब्लम खुशी, लेट अस गेट सीरियस नाउ। ओके everybody, no problem, let us get serious, Toral. Okay, जय सच्चिदानंद। जय कल का सच्चिदानंद। होमवर्क क्या है? कल का सच्चिदानंद। होमवर्क क्या है श्रेया? किसमें सिंसियर है और किसमें इनसिंसियरिटी। वेरी गुड, थैंक यू। जय